Good morning, students. I think all of you are well. As we are studying history, so in previous class we have already discussed about modern period in history. Right now I am going to start next topic of history, which is India under colonial rule. In this topic, we have to discuss that how European companies enter in India and make it their own colony. Before going to start, at first I want to explain colony. A colony is a country or area which are ruled by more powerful country which are far away from them. एक देश जो पॉलिटिकली दूसरे शक्तिशाली देश के अधीन होता है, जो मूलतः उससे काफी दूर होता है. इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल. औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत. The trade with India between 7th century and 14th century was dominated by Arab traders. भारत का विदेशी व्यापार 7वीं से 14वीं सदी के बीच में अरब व्यापारियों के अधीन था. They did not face any opposition from traders of any other countries. उन्हें किन्हीं दूसरे देश के व्यापारियों के साथ विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था. Slowly European countries began forming trading companies to trade with Eastern countries. धीरे धीरे यूरोपियन कंपनियां संगठित होकर के दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए वो संगठन बनाने लगी. Now we move forward and know about first European companies, which was English East India Company. English East India Company was one such company which was started by a group of merchant in Britain. English East India Company की स्थापना ब्रिटेन के कुछ व्यापारी समूह के द्वारा की गई थी. In 1600, Queen Elizabeth I gave it charter granting it exclusive right to trade with East. और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने इन्हें अपना अधिकार सौंपा था पूरे भारत में पूरे ईस्ट में व्यापार करने के लिए. द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत. परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली. इन 1612 1612 में. इन 1615 सर थॉमस रो वाज एबल टू गेट सम कंसेशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर. इसके कुछ समय के उपरांत सर थॉमस रो ने कुछ कंसेशन प्राप्त कर लिया जहांगीर के द्वारा. कुछ रियायत व्यापारिक रियायत जहांगीर के द्वारा प्राप्त कर ली. दिस लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री एट मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. परिणाम स्वरूप मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना हुई. एक्चुअली these factories were not the place of manufacturing, but they consist godown for goods, offices for maintaining record and residential quarters for companies representative. मूलतः ये कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी. ये एक ऐसा गोडाउन हुआ करता था जो सामानों का जहां पर संग्रह किया जाता था, और कुछ ऑफिसेस होते थे जहां पर सभी का रिकॉर्ड रखा जाता था, और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हुआ करते थे जहां पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रहा करते थे. The settlement at Madras, Calcutta were fortified and called Fort St. George, Fort St. William respectively. ऐसा है कि सेटलमेंट जो मद्रास में कलकत्ता में हुआ था उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट विलियम कहा गया था. Now we move forward and know about the next company, which is Dutch East India Company. And Dutch is Dutch East India Company was the company of Holland. Actually, people of Holland is considered as Dutch. The Dutch East India Company was set up in 1602. Dutch East India Company की स्थापना 1602 में हुई थी. With permission from their government, उसकी सरकार के आदेश के द्वारा. They established their settlement in Cochin, Goa, Daman and Diu. उसके बाद परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना सेटलमेंट कोचीन में, गोवा में, दमन और दीव में स्थापित किया था. After interment war and agreement with British, they gave up most of their claim to India and concentrated on Indonesian island. ऐसा है कि ब्रिटिश के साथ राइवलरी होने के चलते उन्होंने भारत का व्यापार ब्रिटिश के अधीन कर दे दिया और खुद अपने आप को इंडोनेशियन आइलैंड में कॉन्सेंट्रेट कर लिया. Now we have to move forward and know about the next company, which is French East India Company. French East India Company. The French East India Company was established in 1664 under the control of French government. फ्रांसीसी सरकार के अधीन में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी. In India, it is established its factories at Chandranagar, Bengal, Mahe, Puducherry, Karaikal, Masulipatam and Pondicherry. भारत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री चंद्रनगर बंगाल में, माहे पुडुचेरी में, कराईकल और मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी. Its traditional interest about it in India as rival to British traders. मूलतः ये क्या ब्रिटिश के मूल प्रतिद्वंदी थे, चिर प्रतिद्वंदी थे. The English East India Company, which was more independent body in comparison.
और ऐसा है कि ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया सॉरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद स्वतः अपने सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के अधीन थी, उसे सरकार के आदेश का पालन करना पड़ता था। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट ट्रेड राइवलरी। जब अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग कंपनियां बन रही थी तो लोग व्यापार करने के लिए लालायित थे। There were several trading companies from Portugal, Holland, Britain, France and Denmark competing for Indian goods. ऐसा है कि यूरोप ढेर सारी यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाल की, हॉलैंड की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, डेनमार्क की, सभी भारत में व्यापार करने के लिए आपस में प्रतिद्वंदी बनी हुई थी। दिस लेड इंटेंस राइवलरी among them. इसके चलते आपस में लोगों में राइवलरी हो रही थी। The motive of all companies was to earn maximum profit of by buying goods at low price in India and selling them at very high price in Europe. और ऐसा है कि इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भाई भारत से वो लोग सस्ते दर में कच्चा माल खरीदते हैं और यूरोप में बने हुए सामान को अधिक दामों में बेचते हैं। दैट्स ऑल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, एंड फॉर होमवर्क यू हैव टू क्लिक पीडीएफ लिंक ऑफ स्कूल ऐप। थैंक यू।